Very good morning, friends. Today we'll start with Relational Database Design, Part 3. Today we will see the crucial part of this particular unit, that is how we can able to design relational databases. I'm Mahesh Sangvi, working as Professor and Head, Department of Computer Engineering, SNJB's Letso KBCN College of Engineering, Chandwad. Before I start with today's session, I would like to wish you all a very happy Engineers Day. You all will be what budding engineers, and soon, after grabbing all this kind of knowledge, you all will become what engineers soon. So, my dear students, I wish you on behalf of this Engineers Day a very happy Engineers Day. On behalf of your Department of Computer Engineering and Letso KBCN College of Engineering, Chandwad. Let's look at the agenda of today's discussion. So before I start with the agenda of today's discussion, you all should be aware that what we have taken what at previous session. Okay, so review of last session means we have seen what the 12 rules of what chords. So that we have seen, and we started with what relational database design. Again, after review, we will see what exactly is bad and good database design. What are the features of what good database design? Today we will able to we can able to differentiate what is called bad database design and what is called as what good database design. And finally, we'll just introduce the normalization process, and then from tomorrow onwards, we'll start the process of normalization with the help of various normal forms. So friends, you can see that these are what the relational database design, and where we have to focus on features of good relational designs. So before I start with this, you again must be aware this is the topic related with what a ER diagram. So at initial sessions at unit number 1, you might have seen what I have done. We started with what ER diagram. Okay, so you have drawn ER diagram, and finally you converted what ER diagram into table. So this is what one of the assignment that I have given into what Google Classroom. I hope you must have done it. For T computer student, it is mandatory, so please do it. It is important. That will give you what marks as far as your internal assessment is concerned. So I have given you one of the ER diagram, and I told everyone to convert it into what table. So the first step is what? First step will be your requirement analysis, okay, or requirement gathering. Then you should able to what? Design or draw ER diagram. Then you need to convert that ER diagram into table. Then the fourth step, we need to apply normalization. Okay, so that we can able to convert all this table, which is converted from what ER diagram, with the help of normalization process, that is normally to convert bad database design, okay, bad database design to good one. Okay, now what is called as bad database design? So naturally, where the redundancy is more, we can say the database design is what? Bad. Why redundancy has problem? Because redundancy may leads to what? Various issues like anomalies, and what are that anomalies that we will see today into this particular session. But I'm simply correlating you. Requirement gathering means what? We need to understand for what purpose we are, like what is the application for which we want to draw what ER diagram, or for which we want to what design a database. Okay, so just take an example that we are conducting your attendance every day. Okay, so what is our requirement gathering? हमें जो भी ER diagram बनाना है every day, आपका जो भी attendance analysis चलता है, उसके लिए हम लोग को क्या करना रहेगा? We have to draw an ER diagram. So application, we are fixing that. Application can be what? Attendance analysis. Okay, and for analysis of attendance, it is important to take what? Attendance first. So what are the ways of taking attendance? So different ways of taking attendance. We are normally taking attendance through Google form, through polling. You are writing your names into what? You're writing your names into the chat window. That may be YouTube chat window, or that may be Zoom chat window. Okay, so these are the ways. And sometimes we take what? Your photographs, and we also take what? Snapshot of your the way you are actually entering into the Zoom or YouTube. So these are the ways of what? Taking attendance. So collection of data is important. Once it is gathered, data is gathered, we need to what? Analyze it. So this is what the requirement that is given, and the next job is to what? Design or draw ER diagram.
तो जैसे ही हम लोग को पता चलेगा हम लोग क्या करेंगे, ईआर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ईआर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जरूरी क्या है, हमें एंटिटीज जो भी है वो ढूंढने होंगे और रिलेशनशिप्स जो भी है उस एंटिटीज में वो ढूंढने होंगे। सो व्हाट वी नॉर्मली डू, वी आइडेंटिफाई द एंटिटी। तो अटेंडेंस एनालिसिस में क्या एंटिटी आएगी, तो एंटिटीज कौन से आ सकते हैं, स्टूडेंट का अटेंडेंस हम लोग लेते तो वो एक एंटिटी आएगा, कौन अटेंडेंस लेता है, टीचर लेता है इसलिए वो एक एंटिटी आएगी, किससे रिलेटेड अटेंडेंस चल रहा है, जैसे डीबीएमएस ये कोर्स है, कोर्स वाइज आप लोगों का क्या चलता है, अटेंडेंस चलता है। सो दिस थ्री विल बी व्हाट एंटिटीज हियर। ओके, तो ये तीनों आप लोगों को क्या करना रहेगा, एंटिटीज आइडेंटिफाई करना है। एंड फाइनली आपको वो एंटिटीज जो भी है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी आप लोग क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। नेचुरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एंटिटी, इसके साथ में आपको एट्रीब्यूट्स भी क्या करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। यानी स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम है, उसका क्लास है, ये सारी चीजें स्टूडेंट के डेटा के साथ में आएगी। टीचर की केस में टीचर का आईडी आएगा, टीचर का नाम आएगा, वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो चीज जो भी है वो आ सकती है। जब आपके कोर्स के बारे में आएगा तो कोर्स आईडी आएगा, उसके बाद कोर्स का नाम और उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट के लिए, कौन सी क्लास के लिए ये वाला कोर्स है, ये इंफॉर्मेशन उसमें आ सकती है। This way you can able to form what entity as well as what its attributes. Then you can identify the relationship between that entities, and finally your ER diagram will be what, ready. Once your ER diagram is ready, you need to convert that ER diagram into what, table. तो आपको उसको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही आप लोगों ने उसको टेबल में कन्वर्ट किया तब जाके आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो टेबल यदि आप लोगों के पास रेडी है, यानी क्या आपके पास एक डेटाबेस जो है वो रेडी रहेगा, जो आप ईआर डायग्राम से ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, उस टेबल को लेके हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये वाला डिजाइन जो भी है, ये टेबल का डिजाइन जो भी है, ये गुड है या बैड है। यदि गुड है उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, यदि बैड है हम लोग को चेक करना रहेगा कि ये गुड है या बैड है। So today in this session you will understand that what exactly is normalization. Rather we will focus more on, today we will focus more on what the bad database design and what the good database design, and what are the features of what good database design. So let's focus on this topic today. So before we start, I'll just let you know that what is the goal, that we need to able to what, we need to design a very good database. That is what the main aim. Okay, so what is the goal? Set of relations having what, good database design. So that we have to see today. So let's see on this particular part. Okay, so features of good relational database design will be what, minimum redundancy, that should be there. ओके, यानी क्या, बैड डेटाबेस डिजाइन किसको बोल रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी की वजह से एनोमलीज बहुत आती है। ये एनोमलीज क्या वर्ड है ये आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि रिडंडेंसी जहां पर ज्यादा आएगी वहां पर प्रॉब्लम है। ज्यादा रिडंडेंट डेटा जिस पर्टिकुलर डेटाबेस में रहेगा या जिस पर्टिकुलर रिलेशन में रहेगा उसको हम लोग बैड डेटाबेस डिजाइन बोलेंगे। और जैसे ही हम लोग इसको मिनिमाइज करते जाएंगे वो क्या बन जाएगा आपका, गुड डेटाबेस डिजाइन। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर, दैट इज व्हाट, मिनिमम रिडंडेंसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी? रिडंडेंसी यानी क्या, आपके पास ये एक रिकॉर्ड यदि है, यदि मल्टीपल जगह पे क्या कर रहे हैं, रिडंडेंट यदि हम लोग करते हैं, ये एक रिकॉर्ड मल्टीपल जगह पे क्या होगा, रिडंडेंसी इसका आएगा। उस पर्टिकुलर केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिडंडेंसी इज देयर। So same data repeated into what, multiple table or in a same particular relation, such type of thing is known as what, redundancy. यानी क्या, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यदि 2 बार आया होगा तो काफी कंफ्यूजन आप लोगों को होगा ना, कि नेचुरली ये पर्टिकुलर जो भी डिजाइन है इसमें ये पर्टिकुलर टेबल है, इसमें यदि एक से ज्यादा टेबल यदि आ गए, एक से ज्यादा रिलेशन आपका टपल यदि आया तो आपको नेचुरली कंफ्यूजन होगा। यानी रोल नंबर 1 का डेटा जो भी है वो है, फिर से रोल नंबर 1 का डेटा आ रहा है, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले अटेंडेंस रोल नंबर 1 में गई और दूसरी वाली अटेंडेंस रोल नंबर 1 में गई, तो काफी बार आप लोगों को चैलेंजेस जो भी है वो आ सकते हैं। सो रिडंडेंसी इज द बिगेस्ट इशू। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल, दैट यू कैन सी दैट व्हाट वी कॉल रिडंडेंसी। सो रिडंडेंसी मींस व्हाट, यहां पर आप देखिए R1 और R2 इसके C1 के जो भी वैल्यूज है, यानी R1 R2 R3 R4 दीज आर रिकॉर्ड्स। ये क्या है, रिकॉर्ड, जिसको आप लोग टपल्स बोलते हैं। इसमें एक्स वाई जेड और फिर से एक्स वाई जेड हम लोगों ने क्या किया, रिपीट किया। यानी क्या, ये अल्टीमेटली रिडंडेंसी ऑफ रिकॉर्ड हो गया, रिडंडेंसी ऑफ डेटा हो गया। जब भी रिडंडेंसी यहाँ पर आएगी, वन हैज टू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, और इस रिडंडेंसी को हम लोग को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज जो भी है वो करते आना चाहिए। यदि हम लोग उसको मिनिमाइज करते हैं, जितने लेवल तक उसको मिनिमाइज करेंगे, वी कैन से इट इज गुड डेटाबेस डिजाइन। ओके, so what are the disadvantages of redundancy? What is the problem with redundancy? Storage of wastage of what, storage space, unnecessarily xyz ये रिकॉर्ड हम लोगों को क्रिएट करने के लिए जो भी स्पेस लगा होगा,
फिर से वही रिकॉर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर स्पेस जो भी है वो ज्यादा लगेगी। लेकिन आजकल स्पेस के लिए कौन डरता है? आप बोलोगे सर आज की डेट में हमारी जेब में ही करीबन क्या है, आज की डेट में हमारे जेब में 500 GB तो आराम से मिल जाएगा, तो फिर क्या डर क्या है स्पेस का? लेकिन दोस्तों स्पेस जितनी जगह पे आएगी उसकी वजह से एनोमलीज आएगी, और उसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो आप लोग देख सकते हैं। सो इट लीड्स टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट एनोमली। अब क्या होता है ये इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट एनोमली? तो ये हम लोग एक्चुअली विद एग्जांपल जो भी है वो यहाँ पर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। वी कैन से द डेटाबेस इज गुड डेटाबेस डिजाइन इफ इट हैज लेसर रिडंडेंसी। Next thing is regarding null. So if we have lesser null values in tuple, it will be again better. अब देखिए जैसे ही हम लोग नल स्टोर करते हैं, देखिए नल देना बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को एक्चुअली फ्यूचर में जो पर्टिकुलर वैल्यू लग सकती है उसको हम लोग पहले से ही लेके रखते हैं और हम लोग उसको नल कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, ओके, थर्ड ईयर का रिजल्ट जब भी आपका आएगा वो हम लोग आज ही लेके रखते हैं और उसको नल करके रखेंगे, दैट इज ओके। ओके, लेकिन अननेसेसरीली नल वैल्यू से क्या होगा, आपका जो भी स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पहले से ही उसको क्या करके रखना पड़ेगा, जो भी स्पेस है वो अलोकेट करके रखनी पड़ेगी, और वो नल जितना आप लोगों का कम रहेगा उतना आप लोगों का डिजाइन जो भी है वो बेहतर होगा। सो इट इज बेटर टू फोकस ऑन व्हाट दैट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ नल? नल में हैव व्हाट सर्टेन डिसएडवांटेजेस लाइक वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट व्हाट नल वैल्यू। नल वैल्यूज को इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यदि आप एग्रीगेट फंक्शन लगाओगे तो जब आप एवरेज करके देखोगे, सम करके देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि नल वैल्यूज आर दैट मे क्रिएट व्हाट प्रॉब्लम। सो ट्राई टू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली। कहीं पे आप नल वैल्यूज लेके देखिए न्यूमेरिक फील्ड में, उसका एवरेज लेके देखिए और चेक कीजिए कि 6 में से यदि 4 वैल्यूज क्या है, वैल्यू उसमें है और 2 नल वैल्यूज है, तो एवरेज में 6 आएगा, डिवाइड बाय 6 आएगा या डिवाइड बाय 4 आएगा। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल आप लोग करके देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आने वाले कोई भी इंटरव्यू के जो भी टेक्निकल राउंड्स है वो आप लोग क्रैक कर पाओगे। सो प्लीज चेक इट प्रैक्टिकली, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, तो बेस्ट डेटाबेस डिजाइन क्या रहेगा फिर? नेचुरली रिडंडेंसी भी कम होना चाहिए और नल वैल्यूज भी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ओके, सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग converting bad database design into what? Good database design. So simplified definition that I have already told you regarding what normalization is, what? Converting bad database design to what? Good database design. Very very simple definition. हमारे पास जो भी डेटाबेस डिजाइन दिया गया है वो बैड रहेगा ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। बैड है या नहीं ये चेक करेंगे। जब बैड है ये पता चलता है तो देयर इज ओनली वन प्रोसेस, दैट इज नॉर्मलाइजेशन, टू कन्वर्ट दिस बैड डेटाबेस डिजाइन इनटू व्हाट? गुड डेटाबेस डिजाइन। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। सो दैट वी नीड टू फोकस टुडे रिगार्डिंग व्हाट? द नॉर्मलाइजेशन। Okay, so normalization is the process of converting bad database design into what? The good database design. Now regarding normalization you can see that किस तरीके से हम लोग ये वाला टास्क करते हैं। तो आपके पास एक लार्जर टेबल रहेगा, बहुत बड़ा टेबल आपके पास रहेगा, और उस टेबल को आप लोग क्या करोगे, डिकम्पोज कर दोगे, यानी स्प्लिट कर दोगे स्मॉलर टेबल्स में। जैसे आप उसको स्प्लिट कर दोगे तो 99% क्या होता है, आपका रिडंडेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवॉइड हो सकता है। हमेशा यह जरूरी नहीं है कि आपके पास जो टेबल रहेगा उसमें रिडंडेंट डेटा रहे, लेकिन बड़ा टेबल है और उसमें कहीं पे रिडंडेंसी आपको नजर आती है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, जिसको डिकम्पोजिशन बोला जाता है। डिकम्पोज कर सकते हैं और डिकम्पोज करने के बाद वी मे गेट व्हाट? स्मॉलर टेबल, एंड वंस वी गेट स्मॉलर टेबल there may be possibility of what? Minimizing your redundancy. But mind it, when we are dividing table we should again able to what? Join that table and we should get what? The original one. So we need to focus more on what are the properties of decomposition that we'll see into what? Subsequent sessions. So this is all about what? The normalization. It is the technique of what? Converting bad database design into the good database design. This is what the simplest definition. Now what is redundancy? What exactly is data redundancy and why we should reduce it? Okay, so that we need to focus today. So let's see on that particular part. So I was talking about what? The anomaly, and now it's high time to focus on what? Anomaly. So here you have to focus that row 1, row 2, row 3, row 4 is there, and this is what the record which are there, row 1, row 2, row 3, and here you can see that this particular data is getting what? Redundant. Okay, तो ये redundancy जो भी है, repetition of similar data may leads to what? Certain anomalies. So that we need to focus.
तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा, यही डेटा बार बार रिपीट होगा तो अननेसेसरीली इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो हमेशा याद रखना है डेटाबेस में साइज इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे हार्ड डिस्क बहुत है लेकिन रैम भी बहुत है, लेकिन जब आप नेटवर्क के ऊपर उसको काम करोगे, क्योंकि आप आज की डेट में देखिए इंटरनेट एक्सेस करते हैं, आप बाहर से डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। आपको बुरा लगता होगा ना जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और ऑनलाइन में जल्द से जल्द वो दिखाई नहीं देता है, जब आप सीट नंबर डालते हैं काफी समय वो लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉपर रिडंडेंसी यदि हम लोगों ने अवॉइड की होगी तो नेटवर्क का ट्रैफिक कम हो सकता है, और दैट इज द रीजन वी नीड टू फोकस more on what redundancy. So dear friends, you will understand with this particular example that suppose here you can see that this is what the table having redundant data of MR Sanvi and it's my official number is what 505. ओके, यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि CSC भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी CSC यानी क्या, आपका डिपार्टमेंट। तो ये क्या बनाया है डेटाबेस, तो यहाँ पर रोल नंबर और नेम, ये आप लोगों के रोल नंबर और आप लोगों के नाम होंगे ऐसे समझ के चलिए, और जहां पे कौन सा टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट में आप हो, सो डिपार्टमेंट नेम विल बी CSC। ओके, उसके बाद यदि आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनका भी नाम और आगे आईटी 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 आएगा। देन हु इज हेड, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा करीबन 300 स्टूडेंट्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है, तो उनका वहां पर क्या आएगा, हेड का नाम आएगा MR संधि। तो मेरा नाम जो भी है वो 300 जगह पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। CSC यानी ये डिपार्टमेंट भी कितनी जगह पे रिपीट हो जाएगा, 300। आईटी में यदि 200 स्टूडेंट्स है तो 200 आईटी डिपार्टमेंट का नाम जो भी है आईटी, ये 200 टाइम्स क्या होगा, रिपीट होगा, और मेरा नाम फिर से वहां पर 200 टाइम्स रिपीट होगा, तो मेरा नाम टोटल 500 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और उसके साथ मेरा जो नंबर एसोसिएटेड है, जो भी मेरा ऑफिस का टेलीफोन नंबर है, जो मेरा एक्सटेंशन नंबर है, ये भी क्या होगा उसके साथ में रिडंडेंट होगा। तो दोस्तों इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अननेसेसरीली डेटा जो भी है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर रिडंडेंट होगा। फिर से कोई नया स्टूडेंट हम लोग ऐड करने जाएंगे तो वहां पे भी आपको रिडंडेंसी जो भी वो नजर आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर फोकस कीजिए, रिडंडेंसी कहां पर है, डिपार्टमेंट में है, एचओडी के नाम में है और उसके टेलीफोन नंबर में है। सो दिस इज व्हाट द रिडंडेंसी। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस पर्टिकुलर रिडंडेंसी, तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये रिडंडेंसी से एक्चुअली क्या होगा। ओके, तो क्या होगा इस पर्टिकुलर रिडंडेंसी से, और कोई नया रिकॉर्ड यदि मैं ऐड करने जाऊंगा तो क्या होगा, फिर से एक आध स्टूडेंट आता है जो CSC डिपार्टमेंट में होगा, तो उसके हेड का नाम फिर से रिपीट होगा, उसके डिपार्टमेंट का नाम फिर से रिपीट होगा, उसका ऑफिशियली टेलीफोन नंबर भी क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। तो ये रिडंडेंसी जो है इस एग्जांपल में दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी क्या है वो क्लियर हो गया रहेगा दोस्तों आपको। नाउ वी विल फोकस व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट रिडंडेंसी। सो इश्यूज ड्यू टू व्हाट रिडंडेंसी विल बी एनोमलीज। एनोमलीज यानी क्या 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 प्रॉब्लम आ सकती है, इंसर्शन एनोमली आ सकती है, डिलीशन एनोमली आ सकती है, और अपडेशन एनोमली आ सकती है। So let's focus on what exactly is what insert anomaly, and we will see that anomaly यानी ultimately मैंने जैसे बोला कि प्रॉब्लम क्या है। तो स्टूडेंट का टेबल आप लोग कंसीडर कीजिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था। यहाँ पर जब आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाओगे, दैट इज व्हाट द रिकॉर्ड नंबर 5 ऑफ जैक, जहां पे आपको समझ में आ रहा है CSC डॉक्टर MR संघवी एंड अगेन 505, ये फिर से इंफॉर्मेशन फिर से क्या हो रही है, यहाँ पे रिडंडेंट हो रही है। दिस इज नोन एज व्हाट, इंसर्शन ऑफ व्हाट रिडंडेंट डेटा एवरी टाइम। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन एनोमली, यानी क्या, अननेसेसरीली जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल था वो फिर से मुझे क्या करना पड़ रहा है, इंसर्ट करना पड़ रहा है। सच एन इशू इज नोन एज इंसर्शन एनोमली। Okay, so you can see that the thing which is highlighted by green and the thing which is highlighted by blue is actually what, copy of redundant data. Okay, so this is what the problem of insertion anomaly. Now let's focus on what insert anomaly, deletion anomaly. Now deletion anomaly means what, when suppose we have to delete the record of, let's say, Jack. Okay, when we have to remove the data of Jack, what will happen, loss of related data set when other data is what deleted। यानी क्या, यदि ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ये जो भी नाम है ये हटाना है, ये रिकॉर्ड हटाना है, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, ये वाला इंफॉर्मेशन जो भी है ये भी क्या हो सकता है, मींस डॉक्टर MR संघवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है आपकी, कभी कभी लॉस हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि ऐसा कुछ इश्यू आता है कि हमें क्या करना है, हेड का नाम ही डिलीट करना है, हेड का नाम डिलीट करना होगा, तो आपको कितनी जगह से वो डिलीट करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स के, यानी 500 जगह पे रिपीटेड था तो 500 जगह से उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। दैट इज द बिगेस्ट इशू। ओके, यदि नाउ नेक्स्ट इशू इज व्हाट, अपडेशन एनोमली। हम लोगों ने इंसर्शन एनोमली देखा, डिलीशन एनोमली देखा, यानी जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो रिडंडेंसी का इशू क्या है, डिलीशन में क्या होगा, रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो रिडंडेंसी का इशू क्या है, और अब हम लोग फोकस कर रहे हैं कि यदि रिकॉर्ड को अपडेट करने की जरूरत पड़ी तो क्या प्रॉब्लम आएगा।
तो फॉर एग्जांपल यदि हम लोगों को पता चला कि ब्रांच ट्रांसफर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स लेते हैं, मान लो सीएससी से सिविल में किसी ने ब्रांच ट्रांसफर लिया, जाके नाम का जो भी स्टूडेंट है इसने क्या किया, सिविल में ब्रांच ट्रांसफर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल यहाँ पर सिंपली एक ही जगह पे करना है। ओके, लेकिन आप समझिए कि आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यदि एमआर संघ भी आपके हेड ही क्या हो गए, चेंज हो गए, यहाँ पर यदि चेंज हुआ तो फिर से 500 टाइम्स आपको अपडेट क्वेरी जो भी है वो क्या करनी पड़ेगी, रन करनी पड़ेगी। सो 500 जगह पे जहां पे एमआर संघ भी नाम अवेलेबल होगा वहां पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ व्हाट, repetition or redundancy. So my dear students, this is known as update anomaly, insert anomaly and delete anomaly. आपको एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन किया गया है, एक्सप्लेन anomaly with suitable example, तब जाके ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने insert anomaly क्या है, delete anomaly क्या है, update anomaly क्या है, ये प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। So this is what from my end, my dear students, regarding anomaly is concerned. Okay. So now let's look at on what is the solution of what this anomaly. Anomaly को solution क्या है, anomaly क्यों आया, redundancy की वजह से। तो redundancy को reduce करने का या minimize करने का solution क्या है, okay, तो वो solution है, that is what, normalization. We can able to solve all these issues with the help of normalization. So normalization is the process of converting bad database design into what, good database design. So what exactly we are doing, we are dividing the biggest table, bigger size table, having what, redundancy into smaller one. Okay, वो decompose करते हैं या divide करते हैं या split up करते हैं, तो आपको क्या होगा, दो अलग अलग टेबल मिलेंगे, स्टूडेंट का टेबल और डिपार्टमेंट का टेबल। यानी क्या, ये एग्जांपल आप लोग फोकस कीजिए, ये ओल्ड टेबल की बात मैं कर रहा हूं जिसमें रोल नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट है, हेड है और ऑफिस टेबल है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट, एचओडी और ऑफिस का जो भी टेलीफोन नंबर है वो क्या हो रहा था, रिडंडेंट हो रहा था। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर, वी आर स्प्लिटिंग दिस पर्टिकुलर टेबल इनटू टू। दैट इज व्हाट, वन इज व्हाट स्टूडेंट टेबल, अनदर वन विल बी व्हाट, डिपार्टमेंट टेबल। और स्टूडेंट टेबल में हम लोग क्या डाल देंगे, रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट। ओके, तो और क्या हटा देंगे वहां से, एचओडी और ऑफिस नंबर जो भी है उसको क्या करते हैं, फिर से डिपार्टमेंट का नाम, फिर एचओडी और फिर उसके बाद में क्या होगा, ऑफिस टेबल। तो दोस्तों इससे क्या हो जाएगा, रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट सेपरेट करने से स्टूडेंट का डेटा अलग हो जाएगा, डिपार्टमेंट का डेटा अलग हो जाएगा और उससे आप लोगों को कोई दिक्कतें जो भी है, रिडंडेंसी जो भी है वो काफी हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डिपार्टमेंट की टेबल में आप देखोगे, आपको ये समझ में आएगा, एग्जाम्पल आप लोग देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि यदि यहाँ पर अब मैं स्टूडेंट टेबल की बात करता हूं जिसमें रोल नंबर 1 2 3 मैंने ऐड किया, उनके नाम मैंने ऐड कर दिए, उनका डिपार्टमेंट का नाम ऐड किया। अब देखिए इस डिपार्टमेंट टेबल में सीएससी, एमआरएस और 505 ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, बार बार आप लोगों को इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है और उसका ऑफिस टेलीफोन नंबर क्या है, ये एक ही बार आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो जो पहला वाला टेबल था उसमें आप लोग देख रहे थे कि आपको रिडंडेंसी कहां पर मिल रहा था, डिपार्टमेंट में भी मिल रहा था, एचओडी में भी मिल रहा था, ऑफिस टेबल में भी मिल रहा था। लेकिन यहां पर आप लोग फोकस कीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट का जो भी नाम है ये क्या रह चुका है, रिडंडेंट रह चुका है। तो रिडंडेंसी काफी हद तक हम लोगों ने क्या की, मिनिमाइज की, रिड्यूस की। Such a database design is known as what, good database design. So my dear students, with the help of normalization we can able to convert bad database design into what, good database design. So ये example आप लोगों के सामने मुझे सिंपली क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। अब देखिए आप इंसर्शन करने जाओगे कोई भी नया रिकॉर्ड, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्शन कभी भी करना है तो आपको सिंपली क्या करना रहेगा, कुछ भी नया रिकॉर्ड आएगा तो रोल नंबर 4 उसका जो भी नाम है और उसका जो भी यहाँ पे सीएससी डिपार्टमेंट जो भी उतना आप ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आपके सामने ये पहला वाला रिकॉर्ड था, उसके बाद में हम लोगों ने ये वाले रिकॉर्ड जो भी है वो इंसर्ट किए, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। सो दैट इज द ब्यूटी। ओके, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। सो इंसर्शन एनोमली हम लोगों ने क्या कर दी, यहाँ पर अवॉइड की, कम की। सीएससी आप बोलोगे सर सीएससी तो रिपीट हो रहा है, उतना तो रिपीट होगा, क्योंकि मैंने बोला रिडंडेंसी कंप्लीटली हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मिनिमाइज करना ये टारगेट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मिनिमाइज किया। अब हम लोग अपडेशन के बारे में सोचते हैं। अपडेशन यदि करना है, हम लोगों को पता चला कि 501 मेरा जो भी टेलीफोन नंबर है ये 505 की जगह पे 515 करना है, तो आपको एक ही जगह पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। डिलीट भी आपको करना है तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीपल जगह पे डिलीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लगता है कि अभी एमआर संघ भी ये हेड नहीं है कंप्यूटर या आईटी डिपार्टमेंट के, सिंपली इतना रिकॉर्ड आपको क्या करना रहेगा, रिमूव करना है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सिंपली आप लोगों को यहाँ पर
कौन सा रिकॉर्ड जो भी है वो रिमूव करना पड़ेगा, सिंपली आप लोगों को जो रेड इंडिकेशन किया हुआ रिकॉर्ड है उतना ही रिमूव करना पड़ेगा। तो आपका लाइफ जो भी है वो काफी सिंपल हो जाएगा। दैट इज इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। ये एनोमलीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, नॉर्मलाइजेशन। So this is what from my end today. From next lecture we will see entire depth of what normalization, क्योंकि ये तो मैंने आपको मेरे तजुर्बे से आप लोग को बताया, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताया, बट हाउ वी कैन एबल टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू दिस। बड़े बड़े टेबल्स जो भी रहेंगे, एग्जैक्टली कब कौन से एट्रीब्यूट्स में उसको डिवाइड करना चाहिए, इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर हम लोग कल से देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर द अटेंडेंस। मैं आप लोगों के सामने साथ में अटेंडेंस के पहले पोल शेयर करता हूं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अटेंडेंस के ऊपर फोकस करेंगे। सो लेट्स बी रेडी फॉर व्हाट, द पोल। So as usual, I'm sharing the poll at what, YouTube channel first. Okay, so the students on YouTube should able to now see the polling. Okay, so I have shared with you the poll. Please give appropriate answer. Read it very carefully. Today's poll is very simple. Now those who are on Zoom chat window, I'm sharing with you all. Okay. So I have shared it on what, Zoom as well as what, YouTube. Wish you all the best. Give proper answer. Select appropriate answers. I'm waiting for you for a minute. अटेंडेंस का लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप सभी लोग अटेंडेंस भी यहां से फिलअप कर सकते हैं। Those who have difficulties, now you can raise your hand or you can unmute yourself and you can ask your difficulties. So those who are on Zoom, आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पोल जो भी है वो शेयर करता हूं, so we can have a discussion on that. Okay, so I'm sharing the poll with you all. The poll is launched for the students having at Zoom with same questions. Okay. So polling is there. Try to give the answers. Last 10 seconds. Okay, so I'm ending the poll and I can see that almost 67 students have voted about what this particular poll.
So I'm sharing the results with you all so that you can able to understand the use of what this particular polling. Now, my dear students, you can focus here that the very first question was what. Now it's time to give what answer to your questions, and you can able to check whether your answers were right or not. Okay, so very first question was bad database design means it has major redundancy. Answer is true, and 99% students have given what right answer. Hearty congratulations for your right answer. Okay, it is right that bad database design contain major redundancy. Okay, so redundancy को कम करना या नहीं क्या normalization या नहीं क्या bad database design को good database design में convert करना. So answer to your second question is what. Dash is the process of converting bad database design into what good database design. 99% students have given right answer. Right answer is what normalization, and normal form is what it is wrong because आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेस. यहाँ पे आपको प्रोसेस पूछा है तो इसलिए इसका डेफिनेशन इस तरीके से आएगा. नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बैड डेटाबेस डिजाइन इनटू व्हाट द गुड डेटाबेस डिजाइन. I hope you will understand this particular part. Okay, if you have any difficulty, you can please ask the question either on chat window. You can even able to unmute yourself and you can ask the doubts if you have. Yes, dear students. If you have doubt, you can ask. Those having doubts on what YouTube, you can ask it on what chat window. I can able to see your doubts there and I can able to resolve your doubts. Let me know your doubts if you have. You can even unmute yourself and you can ask, or you can write it on chat window. I hope you are understanding whatever which is going on into the classroom. Okay, आपको कोरिलेशन समझ में आया कि क्या करना रहेगा, ये क्यों हम लोग सीख रहे हैं. तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट कि कौन से एप्लीकेशन के लिए हम लोग डेटाबेस डिजाइन करना चाहते हैं. फिर हम लोगों को ईआर डायग्राम बनाना है. फिर हम लोगों को उस ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करना है टेबल में, और वो जो भी टेबल रहेगा उसको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगा के हम लोग गुड डेटाबेस डिजाइन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. This is what an idea, and that is the reason we are actually focusing on what, and I am correlating this with what ER diagram. This, always remember ER diagram is also a part of database design. Okay, और अब यहाँ पर normalization करके normal form करके भी ये भी क्या है आपका normal, ये इसी का part है किसका, database design का. So that you need to understand. If you have doubt, please ask. Okay, so if you don't have doubt, okay, so can I cover one more topic then? Because we have time. We have 7 minutes. Yes, sir. Yes, sir. Can I cover the next topic? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. Okay. All right. So dear students, we were at this particular slide and we have seen that if we simply decompose the table, bigger table into the smaller one, we can say that the problem of anomalies like insertion, deletion and updation can be easily resolved, because when redundancy will be lesser, naturally the problem of insertion, deletion, updation, anomaly will be lesser. So let's focus on the next topic, that is what the functional dependency. Functional dependency is very important concept, and that you need to understand. It is a relationship that exists. One attribute uniquely determines what another attribute. यानी क्या, ये क्या है, मैं आपको simple terminology में बोलूंगा. Let me explain it on what your bookish terminology. A functional dependency is generalization of what the notion of key. यानी क्या, आप की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं with the help of what functional dependency. फंक्शनल डिपेंडेंसी का मीनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, वो समझिए. मैं कुछ पहेलियां आप लोगों को दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू व्हाट सर्टेन थिंग्स एंड यू हैव टू आंसर. मुझे ऐसा पर्टिकुलर स्टूडेंट चाहिए जिसका हाइट 6 फीट से ज्यादा है. ओके, जो जिसका पर्टिकुलर जो भी कलर है वो काफी फेयर है. ओके, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो भी है वो रेगुलर है. ऐसा पर्टिकुलर स्टूडेंट जो भी है जो कि हॉस्टल में रहता है.
बोलिए ऐसा स्टूडेंट कौन सा? मैंने पहली दी आपको, मैंने पहली क्या दी आपको? मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए कि जो जिसका हाइट क्या है, मैंने आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स जो भी है वो उसके मैं यहां पर दे रहा हूं। ओके, कौन से पैरामीटर मैं आपको दे रहा हूं? मुझे ऐसा स्टूडेंट ढूंढना है जिसका हाइट ओके ग्रेटर देन 6 फीट। ओके, जो हॉस्टल में रहता है, स्टे कहाँ करता है? हॉस्टल। अब आप बोलोगे फिलहाल तो हॉस्टल में कोई नहीं है, लेकिन आप समझिए जिसने हॉस्टल लेके रखा हुआ है। ओके, जिसका कलर जो भी है ओके वो काफी क्या है? फेयर है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। ये 3 पैरामीटर मैंने आपको दिए हैं, ढूंढिए ऐसा कौन सा लड़का है। भले ही मैं आपको ये बता दूं कि वो स्टूडेंट जो भी है वो स्टूडेंट ओके उसका डिपार्टमेंट जो भी है वो क्या है? आइदर कंप्यूटर और आईटी। अब आप ढूंढो ऐसा स्टूडेंट कौन सा है। काफी टफ जाएगा दोस्तों ऐसा ढूंढने के लिए, राइट? ओके, यहां पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसका जेंडर क्या है, वो गर्ल है या बॉय है, ये भी मैंने क्लियर नहीं किया। मैंने सिंपली क्या बोला? वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट। स्टूडेंट कैन बी गर्ल स्टूडेंट और कैन बी बॉय, हैविंग हाइट ग्रेटर देन 6, ओके, स्टेइंग इन हॉस्टल, color is what fair, and the department is either computer or IT. Okay, need to identify the student, difficult to answer. Okay, this is one part. Second question can be like that. मुझे ऐसा आप लोगों ने वो मूवीज में देखा होगा ना कि कई बार ये बोलते कि अरे वो चोर था, वो कैसा था, वो ऐसा था, वैसा था, उसका काफी पूरी चीजें जो भी वो बताई जाती है। लेकिन यदि डायरेक्टली उसका नाम आपको बताया गया तो इजी हो जाएगा। या फिर मैं आपको आज बोलता हूँ आज उसका बर्थडे है, अब आप बोलोगे किसका बर्थडे है? ओके, इफ आई एम आस्किंग यू आज उसका बर्थडे है, किसका बर्थडे है? नाम नहीं पता, राइट? अरे वो बहुत बढ़िया दिखता है, कौन बढ़िया दिखता है? उसका नाम नहीं है। व्हाट इज मिसिंग एवरी टाइम? नेम इज व्हाट मिसिंग। ओके, और हम लोग नेम को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में यहां पर लगे हुए रहते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका आज बर्थडे है, मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो हैंडसम है दिखने के लिए, ओके, या फिर ब्यूटीफुल है, मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका हाइट ग्रेटर देन 6 है, मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो स्टे कहां पर करता है? हॉस्टल में करता है, मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका कलर क्या है? फेयर है। तो दोस्तों यहां पर समझ में आएगा, इतनी सारी पहेलियां देने के बजाय आप सिंपली क्या बता दीजिए? सर नाम बता दीजिए उसका। इसी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? नेम के ऊपर। ऑल दिस एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन व्हाट नेम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, नेम इज functionally determines date of birth, whether you are handsome or beautiful, whether your height is greater than or 6 or not, whether you are staying in hostel or not, whether your color is fair or not, all these attributes having meaning if it is connected with what? The name. इसीलिए यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि name functionally determines what? All these attributes, or all these attributes are functionally dependent on what? Name. तो यहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी जो भी है ये आपको समझ में आएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी क्या? आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर है क्या? फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपका है ना आपके पापा के ऊपर, ओके, आपके पापा मम्मी के ऊपर आप लोगों का क्या है? फंक्शनल फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? फंक्शनल, यानी आपको यदि काम करना है तो डिपेंडेंसी आपकी किसके ऊपर है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि कितने भी पैरामीटर के बारे में मैं बोलूं, मैं यदि ऐसा बोलूं कि अरे आज उसका बर्थडे है, लेकिन किसका? आंसर इज व्हाट? नेम। वी वांट व्हाट? नेम। अरे वो बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल है, कौन? तो उसका नाम लगेगा। जिसका हाइट ग्रेटर देन 6 है, कौन? यहाँ पर ये लगेगा। अरे जो हॉस्टल में रहता है वो कौन? फिर से उसका नाम पता होना चाहिए। जिसका कलर काफी फेयर है, कौन? उसका फिर से नाम लगेगा। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आएगा, यदि मैं सिंपली नाम देता हूं आपको आइडेंटिफिकेशन करना क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान का अपना जो भी वर्क है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होता है किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी क्या? ओके, ए गिव्स यू व्हाट बी। इस तरीके से फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या की जाती है? डिफाइन की जाती है। तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, बुक वाला डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कल के सेशन में। आई होप कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डोंट मिस इट, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर कितने नॉर्मल फॉर्म्स है? आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फॉर्म्स। कितने नॉर्मल फॉर्म्स है? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, BCNF एंड द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है? फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। सो डोंट मिस द लेक्चर ऑफ टुमारो बिकॉज इट विल गिव यू
क्लियर कट आइडिया रिगार्डिंग व्हाट फंक्शनल डिपेंडेंसी। कल के सेशन में मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ जो लोग फोकस करेंगे उनका डाउट जो भी है फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेटेड आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। यू ऑल विल बी व्हाट मास्टर इनटू व्हाट फंक्शनल डिपेंडेंसी। ऑलवेज रिमेंबर फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर लगभग 50% क्वेश्चंस आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर आते हैं ये यूनिट नंबर 3 पे, इसलिए फोकस करना बहुत जरूरी है। और डेटाबेस डिजाइन में काफी अच्छा रोल प्ले करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो दोस्तों कल हम लोग देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी इन अ प्रॉपर वे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ क्विकली कुछ डाउट मुझे यहाँ पर पूछे गए हैं उतना मैं कवर करता हूँ एंड देन आई व्हाट स्टॉप अगेन। सो Anand has doubt that, sir, in normalization, we divide larger tables into what smaller tables. So how the tables are linked to each other? Yes. Anand, I'll definitely give the answer of this particular query into what the next lecture. लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं मैं। जब भी हम टेबल को डिवाइड करेंगे एक कॉमन एट्रीब्यूट दोनों टेबल में रखना पड़ेगा। वो कॉमन एट्रीब्यूट हमें क्या करेगा, फिर से उस टेबल को नेचुरल जॉइन जैसे ही उस टेबल का लेंगे फिर से हमें हमारा ओरिजिनल टेबल जो भी है वो मिल जाएगा। तो दो टेबल में रिलेशनशिप कैसे हम लोग लिंक करेंगे, एक टेबल में वो प्राइमरी की रहेगा दूसरे टेबल में वो फॉरेन की रहेगा। दोनों का जब भी हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लेंगे ज्वाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस ज्वाइन। वन ऑफ द ज्वाइन इज व्हाट नेचुरल ज्वाइन, उसका हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट आनंद। ओके, ये कैसे करना है इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कल जो भी है वो दिखाने वाला हूँ। आई वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे। आई होप यू ऑल विल बिकम व्हाट द biggest or very important engineer of this particular nation, not only of this particular nation but in entire world. You will definitely create your identity. So I hope today's session is what clear to you all, and I again wish you all a very very happy engineers day. Goodbye friends. Okay, आप जो भी नेक्स्ट लेक्चर आपका है उसमें आप लोग अभी जा सकते हैं। थैंक यू ऑल।